Welcome students, I hope you are all well at your home. Today I will explain you first chapter of mathematics and chapter name is the fish tale. That means मछली की कहानी. As you all know, fish is a water animal and lives in different water bodies like lake, river, sea and many others. Can you tell me name of some fishes? Yes, whale shark, rohu, starfish, jellyfish and many others. Let's start the chapter. So here is a 3 lines poem. I will read it first. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. This special poem in 3 lines is called a haiku. Such poems about nature are popular in Japan. ये जो 3 लाइन की स्पेशल पोएम दी गई है जो हमें नेचर के बारे में बताती है इसे जापान में हैकू के नाम से जाना जाता है. हियर इज अनदर हैकू. यहाँ एक और हैकू दिया गया है यानी एक 3 लाइन की पोएम और दी गई है. द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स and returns, ripples shake the lake. Do you know any poem about fish? Yes, in class 1st, 2nd, 3rd, we have studied lot of poems about fish. Just like मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी. Here are some drawings made by children. Look here. This one is made by Navita class 1st and this one is made by Maya class 4th. When you think of fishes, what shapes come to your mind? Children, generally we can use oval and triangle shapes to make different types of fishes. Now here is an activity. Try to use a square and a triangle to draw a fish. यहाँ पर आपने एक स्क्वायर और ट्रायंगल यूज़ करके एक फिश ड्रॉ करनी है. जस्ट लाइक इट. ये हमने एक स्क्वायर लिया हुआ है और उसके साथ एक ट्रायंगल लिया हुआ है जिससे हमने एक फिश बनाई है. Dear students, you can draw fishes very well. Just try at your home. Now turn out your page and come to the next page. Yeah. Look for fish designs around you on clothes, in paintings and on mats, etc. आप अपने चारों ओर फिशेस के डिज़ाइन देख सकते हैं कपड़ों पर, पेंटिंग्स में एंड मैट्स आदि में. मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल whose eyes look like a fish. मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आँखें बिल्कुल फिश की तरह हैं. Can you think of someone who has such eyes? क्या आप ऐसे किसी को के बारे में सोच सकते हैं जिसकी आईज सेम फिश की तरह हैं? Draw a fish with fish eyes. आपने यहाँ पर एक फिश ड्रॉ करना है जिसमें आईज बिल्कुल फिश की तरह हैं हों. Fishes can have very different sizes. फिश मछलियों के जो होते हैं वो डिफरेंट साइज होते हैं. The smallest fish is about 1 centimeter long. जो सबसे छोटी मछली होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है. How long is the biggest fish you can imagine? Yes, before it, I will read this passage. The biggest fish is the whale shark. जो सबसे बड़ी फिश होती है वो whale shark होती है. It is actually not a whale, but it is big. ये जो है एक्चुअली में फिश नहीं होती लेकिन ये बहुत बड़ी फिश होती है. Whales are different from fish. Whales जो हैं वो फिश से डिफरेंट होती है. Whales breathe like we do through their noses. Whales हमारी तरह सांस लेती हैं जैसे हम नोज से लेते हैं. But fish have no noses and they take in water not air. लेकिन फिश की जो है नोज नहीं होती हैं वो वाटर में सांस लेती हैं एयर में नहीं. Whales give birth to babies. Whales बेबीज को बर्थ देती हैं बट फिश ले एग जबकि फिश अंडे देती है. The whale shark fish look big and dangerous but is quite harmless.
व्हेल शार्क जो है दिखने में बहुत बड़ी और डेंजरस होती है, लेकिन ये हार्मलेस नहीं होती. इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस. ये ह्यूमंस यानी कि मनुष्य पर अटैक नहीं करती है. वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर. एक व्हेल शार्क जो है 18 मीटर लॉन्ग होती है. जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट is almost 12 children of your size standing one on top of the other. बिल्कुल वैसे ही कि आप 12 बच्चे आपके साइज के एक के ऊपर एक खड़े हों तब एक व्हेल शार्क बनती है. एंड गेस व्हाट इज वेट? वेल मच मोर देन what 12 of you together weigh. Its weight was about 16,000 kg. इसका वेट 16,000 kg. Now look here. How long is the biggest fish you can imagine? It is 18 meter. How many times longer is your big fish than the smallest fish? Yes. The smallest fish is 1 centimeter and longest and biggest fish is 18 meter. Now it is 18 meter equal to 18 multiply 100 equal to 1800 centimeter. Yes. Now biggest fish 1800 times longer than smallest fish. Yes. Now come to the next page. About how many kilograms do you weigh? Suppose your weight is 30 kg. Now, so 12 children like you put together will weigh about. Yes. 12 children put together weight is 12 multiply 30. It is 12 3 36 360 kg. About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? Yes. Weight of whale shark equal to 16,000 kg and weight of 12 children equal to 360 kg. Now our question is, how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? कि व्हेल शार्क का जो वेट है वो 12 चिल्ड्रन का एक साथ जो वेट है उससे कितना ज़्यादा है? देन 16,000 minus 360. It is 0, 10 minus 6 4, 9 minus 3 is 6 and it is 5 and it is 1. Now yes, the whale shark weighed more than 12 children like you put together is 15,640 kg. Yes. Now next topic, the fish tail. Here the meaning of tail is poonch. Yes. To see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost
looks like two legs. Yes. क्या आपने whale और fish की टेल में कुछ डिफरेंस देखा है? आप देख सकते हैं कि जो फिश की टेल होती है वो सीधी होती है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग सीधी होती है, और व्हेल की जो है लगभग 2 legs की तरह होती है. कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या फिश को स्पॉट कर सकते हैं? यस, दिस वन इज फिश, क्योंकि इसकी टेल जो है उसकी बॉडी के अलोंग बिल्कुल सीधी है, और यहाँ ये व्हेल शार्क की फिश की जो टेल है वो ऐसे अलग अलग लेग्स की तरह निकली हुई है. यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल्स ऑफ फिश. यस, fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. Yes, schools of fish क्या होता है? जब बहुत सारी फिश जो है एक साथ स्विम करती हैं समुद्र में एक बड़े ग्रुप में, तो इस बड़े ग्रुप को जो क्या बोला जाता है? schools of fish. In their school they feel safe from the bigger fish. जो इस स्कूल में यानी कि जब वो ग्रुप में एक साथ स्विम करती हैं तो अपने आप को सेफ फील करती हैं. किससे? बिगर फिश से, बड़ी फिश से. बड़ी फिश उस समय उन पे अटैक नहीं करती है. डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? क्या आप भी जब ग्रुप में होते हैं तो क्या आप सेफ, अपने आप को सेफ फील करते हैं? यस. नाउ टर्न आउट योर पेज एंड कम टू द नेक्स्ट पेज. To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. बहुत बड़ी फिश से डर के मारे, डर से भागने के लिए जो है कुछ स्मॉल फिशेज जो हैं वो क्या करती हैं? खूब सारा पानी पी लेती हैं और स्वेल अप यानी कि खूब फूल जाती हैं और कैसी लगने लगती हैं? बड़ी. जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक स्मॉल फिश है, इसने थोड़ा पानी पिया, ये थोड़ा स्वेल हो गई, इसने और पिया तो ये इतना स्वेल हो गई. यस. नाउ जिंसी यूज्ड these shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals. So below. Yes, so here we have many shapes. Can you tell me the name of these shapes? Yes, this is rectangle, this is circle, triangle, oval and cone and other shapes. Yeah. Try this activity at your home. It will very interesting. Enjoy it. Now, here are some pictures. Yes. Now, come to the next page. Yes. Here is an activity. Which of these sea animal have you seen before? आपको यहाँ पर कुछ सी एनिमल्स दिए हैं. ऑक्टोपस, काम, पैरेट फिश, प्रॉन, जेलीफिश, कटल फिश, स्क्वैट, सिल्वर पॉम्फ्रेट एंड क्रैब. ये आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या ये सी एनिमल्स इनमें से कुछ देखे हैं? यस. फिशरमैन इन देयर बोट्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? आप में से कितने लोगों ने सी देखा है? वेयर डिड यू सी इट? आपने इसे कहाँ देखा है? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? क्या आपने किसी मूवी में देखा है या फिर वास्तव में देखा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? फाइंड आउट. क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है? यस. डू यू नो हाउ टू स्विम? आप समुद्र में स्विम कर सकते हैं? जानते हैं आप?
Would you be scared of the high sea waves? क्या आप बहुत ऊंची लहरों से डरते हैं? Generally, children are not allowed to swim, but under the guidance, you can do it. Yes. Now turn out your page and come to the next page. Close your eyes and imagine the sea with waves rising high. वो बोल रहा है कि आप अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि समुद्र की लहरें कितनी ऊपर जा सकती हैं. हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन डू? क्या आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि वेव्स कितने ऊपर गई? आई थिंक इट इज़ 50 to 60 मीटर हाई. यस, नेक्स्ट. इमेजिन दैट देयर आर अ फिशरमैन इन देयर बोट्स. यस, फिशरमैन किसको बोलते हैं? मछुआरे को, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं. गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स. जो फिशरमैन है वो अपनी बोट में जब होते हैं वो समुद्र की लहरों के साथ ऊपर और नीचे जाते हैं. दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क. जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है तब वो अपनी ट्रिप यानी कि अपनी यात्रा शुरू करते हैं. सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स और वुड टाइड टुगेदर. वो जो हैं कुछ लोग सिंपल बोट में जो लकड़ी की बनी होती हैं, जिसको आपस में बांध के लकड़ी को बनाते हैं, उससे जाते हैं. इफ़ द सी इज़ रफ विथ वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. जब सी इज़ रफ यानी कि जब समुद्र जो होता है बेकार, यानी कि जब समुद्र में काफ़ी लहरें उठती हैं, सही हवा नहीं चलती है, तब तो ये फिशरमैन्स को जो है इनके लिए बहुत मुश्किल समय होता है. यस. These log boats do not go very far. लेकिन ये जो लकड़ी की नाव होती हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. जब ये हवा जो है मदद करती है वो लगभग 1 आवर में 4 किलोमीटर जा सकते हैं. How long will they take to go distance of 10 kilometer? Yes. जो वो फिशरमैन है वो 1 आवर में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं. तो आपने बताना है वो 10 किलोमीटर कितने टाइम में जाएंगे. यस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 10/4 आवर में कवर करेंगे. हियर जो 10 किलोमीटर है इसको हम 4 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. जस्ट लाइक इट, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर एंड प्लस 2 किलोमीटर. यस, फर्स्ट 4 किलोमीटर 1 आवर, सेकेंड 4 किलोमीटर 1 आवर प्लस 2 किलोमीटर हाफ ऑफ दिस यानी कि हाफ आवर. टोटल आपके हो गए 1 + 1 2 आवर एंड हाफ आवर यानी कि हाफ आवर. 2 आवर 2 and half hour. That means 2 hour and 30 minutes. Yes. Next question. Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. ये आपके लिए है. आपने बताना है कि आप जब तेज़ चलते हैं तो आप कितना जो है 1 आवर में चल सकते हैं. आई थिंक 2 and 3 किलोमीटर. ये सब की अपनी अपनी कैपेसिटी है. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज. Fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find out your way on the sea, where you only see water and nothing else.
Yes, next, find out. Look at the sun and find out the direction from where it rises. वो बोल रहा है कि आप सूरज को देखिए और इसके राइज होने उगने की जो है डायरेक्शन को बताइए। यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं। फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, कि जो है आप अपने ईस्ट में जो है कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखते हैं। यस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज का पूरब दिशा से निकलना। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, आपने बताना है कि आपके वेस्ट में कौन सी 2 चीज़ें होती हैं। यस, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज होता है वो कहाँ अस्त होता है, वो वेस्ट में होता है, और इस समय वो क्या होता है, बिल्कुल रेड, ऑरेंज रेड कलर का, बड़ा सुंदर लगता है। यस, व्हाट अ कैच। Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. Yes. समुद्र के बाहर फिशरमैन अधिकतर क्या देखते हैं, एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ से वो मछली को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। There they spread their nets, और वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। They will have to wait for many hours for the fish to come into their net, और उन्हें बहुत घंटे इंतजार करना पड़ता है कि फिशेस जो हैं उनके नेट में आएँ। Look at the different types of boats. Yes, here different type of boats. Just look here and look here. Now, some boats have motor and go further into the sea. कुछ बोट्स में जो होती हैं वो क्या होती हैं, मोटर लगी होती हैं, और वो जो है समुद्र में बहुत तेज चल सकती हैं। Since they go far out, they can catch more fish, और वो जो है इस वजह से ज़्यादा फिश पकड़ती हैं। These boats travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour. देखिए यहाँ पर एक लॉग बोट की हमें स्पीड दी गई थी कि लॉग बोट जो है 4 किलोमीटर 1 आवर में चलती है, एंड अ मोटर बोट इज अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, जबकि मोटर बोट 20 किलोमीटर 1 आवर में चलती है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। बोल रहा है कि मोटर बोट जो है स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक मोटर बोट 1 आवर में कितना चलती है, 20 किलोमीटर। आपने बताना है हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर। 3.5 आवर में कितना बच जाएगी, आपने ये बताना है। यस, फर्स्ट हम जो है 3 आवर्स का बताएंगे। अगर 1 आवर में 20 किलोमीटर चल रही है तो 3 आवर में 20 मल्टीप्लाई 3, यस 23 जा 60 किलोमीटर। जब हमें 1 की वैल्यू पता होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट हाफ आवर जो हो जाएगा वो उसकी बिल्कुल हाफ हो जाएगा, यानी कि 20 की जगह 10 हो जाएगा, उसका हाफ 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई इक्वल टू 60 प्लस 10 इक्वल टू 70 किलोमीटर। Yes, that means the motor boat go in 3.5 hours equal to 70 kilometer. How much time will they take to go 85 kilometer? वो बोल रहा है कि वो 85 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी। अब वो 20 किलोमीटर जाने में 1 आवर ले रही है, तो आपने बताना है 85 किलोमीटर कितने में जाएगी।
तो हम यहाँ पर 85 को जो है 20 के टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं. 20 + 20 40, देन 20 60 + 20 80 एंड एक्स्ट्रा हो गए आपके 5 किलोमीटर. That means first 20 kilometer in 1 hour, second 1 hour, third 1 hour, fourth is 1 hour, and last 5 kilometer. 5 is 1/4 of 20. 5 जो है 20 का 1/4 है, तो यहाँ पर हम टाइमिंग को भी 1/4 कर देंगे. 1 hour means 60 minute. Then 1/4 of 60 minute equal to 1/4 divided multiply 60. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. That means 15 minute. यानी कि यहाँ पर 4 hour के साथ 15 minutes ऐड हो गए. ये टोटल टाइमिंग हो गई 1 2 3 4 hour 15 minutes. Yes. Okay, student. Thanks to listening, and to be continued in next video.